হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু ডক্টর উষা ব্লগস। আপনাদের আবার একটা নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাই। আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আর আমরা পৌঁছে গেছি কাশী চাট ভান্ডার। আর এখন আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটের আরতি দেখে কাশী চাট ভান্ডারে এসেছিলাম চাট খেতে। বাট এত ভিড়, যেখান থেকে আমরা একটু এগিয়ে চলে গেলাম দিনা চাট ভান্ডার। আর এখানে ট্রাই করলাম পালক পাত্তা চাট অ্যান্ড টমাটোর চাট, যেটা আমার কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে। এর ডিটেলড ভ্লগ দেখতে আপনারা চলে যান আমার আই বাটনে। ফুডস ইন বারাণসীর একটা ডিটেলড ভ্লগ আছে, সেখানে কিন্তু ডিটেলড ভ্লগ পেয়ে যাবেন, সেটা একবার চেক আউট করবেন। আর দিনা চাট ভান্ডারের চাট খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমরা কিন্তু পালক পাত্তা চাট আর এছাড়াও টিকিয়া চাটও ট্রাই করেছি। সো এভরিথিং ওয়াজ গুড। আমার বেশ ভালো লাগলো এই দিনা চাট ভান্ডারের চাট। সামনে এত ভিড় যে ভেতরে বসে খাওয়ার একেবারেই জায়গা নেই। সো আমরা চাটটা নিয়ে চলে এসেছিলাম রাস্তায়। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাই করে এর ডিটেলড রিভিউ আছে আমার ওই আরেকটা ভিডিওতে, সেইটা চেক আউট করবেন। বেশিরভাগ চাটেরই প্রাইস 50 রুপিস করে। পালক পাত্তা চাটে কিন্তু পালক পাত্তাটাকে বেসনে ভেজেছে। সো ইয়েস, ইফ ইউ আর ইন বারাণসী, দিনা চাট ভান্ডার ইজ আ মাস্ট ট্রাই। কাশী চাট ভান্ডারে তো অবভিয়াসলি যাবেনই, বাট ইটস ভেরি ভেরি ক্রাউডেড সবসময়। সো এইখানে কিন্তু ক্রাউড থাকে, বাট ইউ ক্যান ম্যানেজ টু গেট আ প্লেট। এখানে একটা মল আছে, পিডিআর মল, তারই সামনে হচ্ছে দিনা চাট ভান্ডার। চারিদিকে ওই যে এইটাতে আছে। এই পিডিআর মলেরই উল্টো দিকে আর একটা দোকান আছে দুধ সাগর, যেখানে আমরা ট্রাই করলাম মালাইও, যেটা কিন্তু উইন্টার মান্থস এর একেবারে ফেভারিট ডেজার্ট অফ বারাণসী। অ্যান্ড বেশ ভালো মালাইও অ্যাকচুয়ালি কি করে তৈরি হয় এভরিথিং সবকিছু আমার ওই আরেকটা ব্লগে আছে, ওটা দেখে নেবেন। আর মালাইওর প্রাইস হলো 60 রুপিস। একেবারে ফ্রথি, খেতে বেশ ভালো। তারপরে কিন্তু এরকম একটা দুধ দেয়। অসাধারণ লোকেশন, এই যে নন্দী চক, আর এই আমরা ঢুকছি, সামনেই হচ্ছে আমাদের হোটেল। আমি বারবার বলছি কারণ ব্যাপক লেগেছে আমার হোটেলের লোকেশনটা। এই জাস্ট এইখানে গিয়ে ওই ডান দিকে। বাজছে হচ্ছে 8:13 আর আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আমরা আগে ব্রেকফাস্ট করব, তারপরে হচ্ছে যাবো আজকে সারনাথ। তো সারনাথের জন্য আমরা আবার একটা অটো বা টোটো কিছু একটা নেব। অটোই মোস্ট প্রবাবলি, সব কিছু হবে। তার আগে ব্রেকফাস্ট করতে হবে। আর ব্রেকফাস্ট করার জন্য আমরা কোথায় যাচ্ছি তমালি ব্রেকফাস্ট করতে? জায়গাটার নাম खटेरी बाजार। আচ্ছা, ওই হোয়াট এভার বাজার, खटेरी बाजार। খটেরি বাজার। আচ্ছা, But it's showing it's closed. খটেরি বাজারে আমরা যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে। এবার সেটা আমরা গুগল ম্যাপের ভরসায় যাচ্ছি। আবার দেখ ট্রিপ অ্যাডভাইজারে লেখা আছে ইট ওপেন। কোনো দোকান শুধু সানডে থোড়ি খুলতে পারে। হ্যাঁ, তাও তো ঠিক। তাহলে যাই হোক, দেখছি আমরা খটেরি বাজারে গিয়ে বাড়ি কচৌড়ি খেয়েই ছাড়। হ্যাঁ, খেয়েই ছাড়বো বাড়ি কচুরি। আর এই হচ্ছে সকালের একদম সকাল সকাল আমাদের গদরিয়া চক। হ্যাঁ, এখন সবাই চলে যাচ্ছে, সেটার রাত। যাই হোক, আমরা কিন্তু সকাল সকাল উঠে একেবারে রেডি হয়ে সেজে গুজে নিয়েছি, কারণ কি খেয়েই আমরা সারনাথ যাব। এবার আমরা দেখছি কোন দিকে যাব। এখান থেকে একটা হচ্ছে টোটো নিলাম রাম ভান্ডার যাওয়ার জন্য, না খটেরি বাজার যাওয়ার জন্য, যেখানে আছে রাম ভান্ডার, যেখানে আমরা খাবো কচুরি। কি বড়ি না ছোটি? বড়ি কচুরি খাবো। তো সব দেখাচ্ছি। মন্দিরের সামনে আমরা আবার এসে গেছি, যেখানে কালকে আমরা এসে যুদ্ধ করে পুজো দিয়েছি। মানে খুব একটা যুদ্ধ না, যাই হোক, আমাদের অনেক কম যুদ্ধ হয়ে হ্যাঁ, কম গেছে। যুদ্ধ ছিল। আর প্রচন্ড কনফিউজিং এটাই মন্দিরের এটাই প্রবলেম, যে ভীষণ ভীষণ কনফিউজিং। আর আমরা এবার যাচ্ছি হচ্ছে ওই যে বাজারটা বললাম, এটার থেকে আরেকটু সামনে, মানে মন্দিরটাকে ফেলে রেখে যেতে হবে। তো 150 আমাদের বলেছে হচ্ছে টোটোতে। দেখা যাক। কোথায় আছে দেখি, আমরা খুঁজে দেখি। এই হচ্ছে बनारस की गलिया, তাও অতটা ন্যারো নয় এটা। হ্যাঁ, এখন সবাই ঘুমাচ্ছে বলে এখন কম লোকজন, নাহলে চারিদিকে শুধু হচ্ছে বাইক, স্কুটি, টোটো, অটো। এখানে জানতে পারলাম যে রাম ভান্ডার কোনো একটা কারণে বন্ধ। সো আমরা আবার ব্যাক করলাম আর বেরিয়ে রাস্তার জাস্ট উল্টো দিকে গৌরী শঙ্কর কচুরিওয়ালা আর
লক্ষ্মী চাইওয়ালা। সো উই ডিসাইডেড বড়ি কচোরি নাই হোক, ছোটি কচোরি ট্রাই করা যাক। সো এই গৌরী শঙ্কর কচোরিওয়ালার কিন্তু ছোটি কচোরি ফেমাস, সো উই ট্রাইড দ্যাট। আর এখানে এক একটা প্লেট হচ্ছে 30 টাকা করে। অ্যান্ড সো আমরা এক প্লেট প্রথমে নিয়েছিলাম ট্রাই করতে, বাট ইট ইজ অসম। আমি ডেফিনেটলি বলবো যে ইউ শুড ট্রাই দিস অলসো, কারণ বেনারসে এসে যদি কচোরি ট্রাই না করেন দেন হোয়াট উইল ইউ ডু। কাজেই এই হচ্ছে সেই ছোটি কচোরি, যেটা তৈরি করা আছে একেবারে চাটের মতন খেতে। আই ডোন্ট লাইক ছোটি কচোরি সো মাচ, বাট এইটা আমার কিন্তু দারুণ লেগেছে, কারণ এটা একেবারে চাট তৈরি করে দিয়েছিল। আর পেঁয়াজ রসুন ছাড়াই কিন্তু এখানে সব খাবার দাবার, অ্যান্ড আই লাভড ইট। সো আমরা আবার একটা প্লেট নিয়েছিলাম, মানে দুজনে 2 প্লেট একেবারে সাঁচিয়ে। তারপরে যাব আমরা লক্ষ্মী চাইওয়ালাতে। আমরা কিন্তু আজকে যাচ্ছি সারনাথ, ইফ ইউ হ্যাভ সিন মাই থাম্বনেল। সো এরপরে কিন্তু আমরা চলে গেলাম লক্ষ্মী চাইওয়ালা। ট্রাই করেছিলাম সিজারিয়ান বাটার টোস্ট আর তার সাথে চা। আর এখানে কিন্তু মালাই টোস্টটা বেশি ফেমাস, বাট মালাই টোস্ট ওয়াজ ফিনিশড, শেষ হয়ে গেছিল। এখন 8টা 8:30 বাজছে, বাট তাও মালাই টোস্ট শেষ হয়ে গেছে। মানে হ্যাভ টু কাম ভেরি ভেরি আর্লি হিয়ার, অনেক তাড়াতাড়ি, মানে 6টা 7টার দিকে এলে মেবি উইল গেট দ্য মালাই টোস্ট। আমরা ট্রাই করছি, আমি ট্রাই করছি সিজারিয়ান টোস্ট। ভালো, আমার বাটার টোস্ট, বাট ওই বিশাল কিছু নয়, পুরো বাটারে ভর্তি হয়ে যাও। তো চা, দিস অলসো নর্মাল, বিশাল আলাদা কিছু। এই যে এখানে এখন বিশাল ভিড় হয়ে গেছে, আর তার পাশে এখানে কিন্তু মালাইও পাওয়া যাচ্ছে, আমরা যেটা খেয়েছিলাম কালকে। আর এইবার আমরা দেখছি গাড়ি টাড়ি করতে হবে কিছু, আমরা কি একটু এগোবো, এখানে পাবো দেখি তো এখান থেকে। এখন বাজছে হচ্ছে 9টা, আর আমরা সারনাথের জন্য একটা টোকন নিলাম। তো মোটামুটি বলছে সারনাথ ঘোরা হয়ে যাবে, মানে আসা যাওয়া সব মিলিয়ে 1.5 ঘন্টায় কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো লেটস সি, যাচ্ছি, পেট একদম ভর্তি, এত খেয়েছি আমরা কচোরি, একদম একদম সেট, এত খেয়েছি, মানে এখানে এত অপশন। আর বিকজ অফ এই ব্লগ অ্যান্ড অল সবাই সব কিছু জানে, তো সব জায়গায় একই রকম ভিড়। হ্যাঁ, পান খেতে হবে, ইয়েস, পানটা বাকি আছে, সব আছে, এখন আমাদের 2 দিন আছে, তো সব কিছু হবে। আর এখন আমি বলবো যে সকালবেলার বেনারস ইজ আ লট বেটার। আমার খুব ভালো লাগছে সকালবেলা, বিকজ মানে অনেক সুন্দর, মানে স্লো সব কিছু, লোকজন আস্তে আস্তে হাঁটছে। আমার সন্ধ্যেবেলা একদম ভালো লাগে, ঠান্ডাটাও বোঝা যাচ্ছে, হালকা ঠান্ডা আছে। অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা যে এখন যেটা বললাম যে মানে সবাই বেশ একটু লেট ব্যাক, বেশ ভালো। বাট সন্ধ্যেবেলা ট্যুরিস্টরাই এত দৌড়াদৌড়ি করছে রাস্তায় যে মানে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। যাই হোক, বাট আমরা এখন যাই আর গিয়ে দেখাচ্ছি যে সারনাথে কী কী আছে। সারনাথ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বুদ্ধিজমের জন্য ফেমাস। আপনারা যখন বারাণসীতে আসবেন 2 দিন বা 3 দিনের ট্রিপে, তার মধ্যে কিন্তু একদিন সকালটা সারনাথের জন্য অবশ্যই রাখবেন। বারাণসীতে ঘোরার মন্দির তো আছেই, বাট সারনাথ কিন্তু ইজ আ ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট প্লেস। এখানে কিন্তু দেখতে তো পারবেনই অনেক কিছু বুদ্ধিজম, যেটা বুদ্ধিজমের জন্য সিগনিফিকেন্ট, বাট তাছাড়া বেনারসি বুনকারদেরও এটা জায়গা। সো ইফ ইউ লাভ শপিং অ্যান্ড ইউ লাভ টু শপ বেনারসি শাড়িজ, তাহলে কিন্তু এই সারনাথে আসা অবশ্যই দরকার। আর এই সারনাথ থেকে কিন্তু ইভেন আপনারা গ্রামেও যেতে পারেন, যেখানে বুনকারদের গ্রাম, আর যেখানে হচ্ছে ওই বুনাইটা তৈরি হচ্ছে। তো ইউ হ্যাভ টু কাম টু সারনাথ। সারনাথে পৌঁছেই গেছি, বাজছে এই 9:46। আচ্ছা, এখানে আমি দাঁড়িয়ে বলবো, ভালো করে সুন্দর করেই বলবো, এখানে বুদ্ধিজমের বেশ একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জায়গা। তো কি আছে আমি বলছি, এখানেও কিন্তু হোটেলস আর গেস্ট হাউসেসও আছে। হাই বুদ্ধিস্ট মোনাস্ট্রি, ওকে। মানুষ দৌড়াচ্ছে না, क्यों कर रहा है ऐसा? যেখানে সারনাথের আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম অ্যান্ড সব কিছু আছে, ওখানে কিন্তু এরম লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি হয় গাইডদেরকে, মানে আপনাদের সাথে গাইড যে যাবে তাদের। তো যাই হোক, আমরা একজনকে নিলাম, অ্যাসাইন করলাম একটা গাইড। তো
সে প্রথমে বলেছিল 20 টাকা নেবে, সো উই ওয়ার রিয়েলি সারপ্রাইজ যে 20 টাকায় কি ঘোরাবে, বাট এর আসল গল্পটা একটু পরে বলছি। यार मेन मंदिर स्तूपा सब दिखावा कोई जिम्मेदारी। हाँ चल ये नया मंदिर दिखा तू। সবাই ঝগড়া করছে কেন? हाँ तो आज হ্যাঁ, বেসিক্যালি একজন গাইডকে আমরা চুজ করেছি, তাই জন্য ওর আর যারা কম্পিটিটার্স আছে সবাই ওকে গালাগালি করতে লাগলো, ঝগড়া করতে লাগলো, আই ডোন্ট নো ওয়াই। যাই হোক, আমরা কিন্তু এখান থেকে গাইড নিয়ে এগোতে লাগলাম। আর সারনাথে কিন্তু টুকটাক মেমেন্টোর অনেক এরকম স্টলস আছে, তো আপনারা যদি সারনাথে আসেন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স যাদেরকে ছোট ছোট টুকটাক জিনিস দিতে আপনাদের ভালো লাগে, এইখান থেকে কিন্তু শপিং করতেই পারেন। এই সামনের এইসব যে স্টলসগুলো থেকে, বা মিউজিয়াম, আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের সামনে যে স্টলস আছে সেখান থেকেও এটা একটা পার্ট। আর এর ভেতরে কি কি আছে উই উইল জাস্ট টেল ইউ। একজন গাইড যাকে আমরা নিয়েছি, হি ওয়াজ ভেরি গুড অ্যান্ড নলেজেবল, সো ও সব কিছু বুঝিয়ে দেবে। আর যেটা বলছিলাম যে এই টুকটাক জিনিসগুলো আমি জানতাম না এর আগে, বিকজ কোনো ব্লগে এত ক্লিয়ারলি বলা নেই যে এই সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো কিন্তু বাইরে পাওয়া যায়। पहले मेरा नाम राज है और हम सारे लोग यहाँ पर सोसाइटी वर्कर होते हैं, बुनकर सोसाइटी से। उनको भी सैलरी मिलता है, हमको मिलता है। और ये जो प्लेस, इस प्लेस का नाम है सारनाथ। आप लोग कहाँ से आना हुआ? कोलकाता से। वेलकम टू सारनाथ। Thank इस you. प्लेस का जो फर्स्ट और ओल्ड नेम हो सारंगनाथ, जो लॉर्ड शिवा के वाइफ ब्रदर भगवान शिव जी के साले का नाम था सारंगनाथ। ये सारनाथ नाम इसका इसलिए पड़ा, जो बुद्ध देव थे उन्होंने अपने 5 जन को पहला बौद्ध धर्म का उपदेश यहीं पर दिया था, और यहीं से ही बुद्धिज्म स्टार्टिंग हुआ है। सार मीन्स होता है स्पीच, उपदेश से, और नाथ मीन्स होता है भगवान। जब बुद्धा ने यहाँ पर पहला स्पीच दिया तब सारंगनाथ से कन्नड़ के सारनाथ हो गया। और ये जो कैंपस, इसको थाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोलते हैं। इस पूरे कैंपस का सारा देख रेख, मेंटेनेंस सब थाईलैंड गवर्नमेंट करता है। अपने इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी मतलब नहीं। और इसके भीतर में जितने भी वर्कर होते हैं ना, उनको टोटल सैलरी भी थाईलैंड देता है। जैसे गार्ड, गार्डनर, इनको पैसा थाईलैंड से आता है। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम होता है ना, सेम बौद्ध धर्म में भी 4 धाम बना है। ऊपर पेंटिंग चारों बना हुआ है। जो पहला प्लेस है लुम्बिनी, नेपाल, जहाँ पर बुद्ध देव का जन्म हुआ था। दूसरा प्लेस इनका बना है बोध गया, बिहार, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और थर्ड प्लेस से भी आज आप लोग आए हुए हैं, सारनाथ। यही जगह जहाँ पर बुद्धा ने अपने 5 जन को पहला उपदेश दिए थे, और यहीं से बौद्ध धर्म आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। और जो लेटे हुए बुद्ध है ना, स्लीपिंग बुद्धा, ये है खुशीनगर, गोरखपुर। वो यूपी में ही पड़ता है। बुद्ध का डेथ प्लेस है। यहाँ से 260 किलोमीटर दूरी पे जगह है जहाँ पर बुद्धा ने अपना बॉडी छोड़ दिया था। वहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और ये जो सारनाथ प्लेस है बहुत बड़ा है, और सारनाथ 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस है। एक तो बौद्ध धर्म, और दूसरे गांव में लोकल बुनकर जो बुनाई करते हैं। यहाँ पर देखने में आपको केवल बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यहाँ बुद्ध के अलावा किसी भगवान का टेम्पल मंदिर फेमस नहीं, केवल बुद्धा का टेम्पल, बुद्धा का मोनेस्ट्री। और सारनाथ को लोग बुनकरों का गांव बोलते हैं, क्योंकि आज भी यहाँ के 80% घरों में केवल लोग बुनाई का ही काम करते हैं। पहले चलेंगे देखने हम लोग यहाँ से बोधि भिक्षु। ये चारों स्टैचू यहाँ पर बुद्ध का है, और बुद्ध का बैठने का देखिए मुद्रा अलग अलग, उनका बैठने का पोजीशन अलग अलग है। जो सबसे ऊपर बड़ी वाली स्टैचू, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं, ऊपर वाला ध्यान मुद्रा। और यहाँ साइड से इसका दोनों उपदेश मुद्रा, एक ही मूर्ति है, लेफ्ट और राइट। साइड वाले मुद्रा को सारनाथ का उपदेश से मुद्रा बोलते हैं, दोनों सेम मुद्रा दिख रहा है। इसी मुद्रा में बैठकर बुद्ध ने अपने 5 जन को यहाँ पर उपदेश दिया था। और जो बीच वाली मूर्ति, इसको बुद्ध का अभय मुद्रा बोलते हैं। अभय का अर्थ होता है जिसके बॉडी में कोई डर, कोई भय ना, बीच वाला अभय मुद्रा। और हम लोग अपने इंडिया में इस पेड़ को पीपल ट्री बोलते हैं, मगर जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं इसी पेड़ को ही बोधि ट्री बोलते हैं। आपके यहाँ बोधि भिक्षु बोलते हैं। रीजन क्या है, भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल गाछ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, मगर एक्चुअल बोधि भिक्षु नहीं। जो एक्चुअल बोधि भिक्षु, रियल पीपल गाछ है, बोध गया, बिहार में। आपने देखा होगा थाईलैंड कंट्री में सारे टेम्पल इसी मॉडल के होते हैं। इस मॉडल को पगोडा बोलते हैं, पेगोडा मॉडल। और इसके भीतर में एक बुद्ध देव की मूर्ति बनी है सिंगल पत्थर की। और 9 फीट 5 इंच हाइट है। मूर्ति में कोई जोड़ नहीं, एक ही पत्थर से बनाया गया मूर्ति। और सैंडस्टोन बलवट पत्थर, उसके ऊपर गोल्ड पॉलिश है, गोल्ड पेंट। और अंदर में जो बुद्ध देव अभय मुद्रा में बैठे, वहाँ बीच वाली मूर्ति अभय मुद्रा। और इस टेम्पल को थाईलैंड गवर्नमेंट यहाँ पर 1964 में बनाया था। ये 1964 का मंदिर और 3 भाग में डिवाइड है। पहले पार्ट में पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए।
गए थे, 1964 का ये मंदिर है। इसमें गए थे, पहला पार्ट बहुत छोटा बना है, जो बना है आम अच्छा। पब्लिक के दर्शन करने के लिए, कॉमन लोग के लिए। टेम्पल का दूसरा भाग इसका है बैक साइड, जो मेडिटेशन हॉल है। जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं मंदिर मूर्ति का पूजा नहीं करते, वो लोग केवल ध्यान करते हैं, तो बैक साइड उन्होंने अपने लिए बनाया। और जो टेम्पल का तीसरा भाग है मंदिर के भीतर है, बेसमेंट। ये टेम्पल जितनी फीट ऊपर उतनी फीट नीचे भी है। वो नीचे ना गेट देखिए, सामने में रेड डोर है, मगर ये साल में केवल एक बार खुलता है, बुद्ध पूर्णिमा, तो बर्थडे हुआ था बुद्ध पूर्णिमा। बट इसके इनसाइड में थाईलैंड गवर्नमेंट केवल 2 लोग, मतलब 2 लोग को अलाउड करते हैं। इसके नीचे पूरे वर्ल्ड में और कोई नहीं आता है। एक तो थाईलैंड के राजा और दूसरे मेंबर दलाई लामा, नाम जानते होंगे आप, जो बुद्धिज्म के धर्म गुरु बोलते हैं उनको। मगर सारनाथ के जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर, कोई भी धर्म के हो, सारे लोग भगवान दलाई लामा को भगवान मानते हैं। मगर सारनाथ में 1% भी बौद्ध धर्म नहीं है। यहाँ के जो लोकल है बुद्धिस्ट नहीं है, फिर भी सारे हिंदू है, फिर भी सारे लोग दलाई लामा को भगवान मानते हैं। रीजन क्या है, इस जगह का पहला बिजनेस रोजगार दलाई लामा ने ही लोगों को दिया था। सुना होगा आपने, बनारस शहर का 2 चीज पूरे विश्व में फेमस है, एक तो पान और दूसरी जो बनारसी साड़ी। मगर जो बनारस की साड़ी होता है उसका बुनाई बनारस सिटी घाट पे नहीं होता, पूरे यहाँ गांव में करते हैं। इसलिए यहाँ के गांव को लोग बुनकरों का गांव बोलते हैं। जब दलाई लामा यहाँ पर पहली बार आए थे ना, दलाई लामा ने देखा था यहाँ पूरे गाँव के पास कोई बिजनेस मिल कंपनी फैक्ट्री नहीं था, और अभी भी यहाँ पर कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं चलता है। तो दलाई लामा ने यहाँ के पूरे लोगों को 5000 हैंडलूम मशीन बटा था गाँव में, जिससे लोग बनारसी बनाना स्टार्ट किए। और प्रेजेंट इंडिया के पीएम मोदी जी यहाँ के MP बने हुए हैं, सांसद, तो उन्होंने यहाँ के सारे बुनकरों को गोद ले लिया है, यानी अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ से केवल 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक हिंदी लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, नाम सुना होगा, उस पूरे गांव को गवर्नमेंट पे गोद लिया हुआ है। और गवर्नमेंट यहाँ के बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 हैंडलूम मशीन और बांटा, ताकि यहाँ के बुनकरों का बिजनेस बढ़ जाए। आज उसी सारी हैंडलूम को मिला के सारनाथ के घर घर में केवल बनारसी साड़ी बुनाई होता है। मगर होता है क्या, गाँव में ज्यादा व्यापारी नहीं जा पाते तो उन घर घर में लेने के लिए, तो दलाई लामा ने इंडियन गवर्नमेंट ने खुद का एक कोऑपरेटिव सामने बना कर दिया, जिसको वीवर्स कोऑपरेटिव बोलते हैं। इसके अंदर सारे बुनकर लोग बनाकर जमा करते हैं, और उसी के भीतर जैसे दुकानदार अपने रोड पे वो दुकान है ना, उसी कोऑपरेटिव से निकाल कर अपना शॉप बना लिया है। ऐसे मतलब रिटेल में कोई खरीद, जैसे हम लोग अगर आए हैं तो लेना चाहते हैं तो वैसा नहीं ले सकते कहीं से, दुकान से, गांव से ले सकते हैं। मतलब गांव वालों का खुद का छोटा कोऑपरेटिव है, जहाँ पे गवर्नमेंट कोऑपरेटिव से सस्ता वो लोग देते हैं। क्या है, और फेमस के अपने बुनाई से होता है, मटेरियल से फेमस नहीं। बनारस का 2 चीज फेमस, मगर दोनों चीजें बनारस में है। पान फेमस हो यहाँ आता है कलकत्ता, तो बंगाल का पान है जो पत्ता लोग खाते हैं। और सिल्क फेमस हो यहाँ आता है बेंगलोर से, बैंगलोर का केवल कारीगरी फेमस है, प्रोसेसिंग। और बनारस साड़ी फेमस के लिए अपने बुनाई से होता है, उससे मटेरियल सारा बाहर का होता है। मगर सुना होगा आजकल बनारस सिटी में लोगों के साथ बहुत फ्रॉड होने लगा, धोखाधड़ी होता है। क्या बनारसी साड़ी के नाम पे लोग पावरलूम वाली साड़ी या फिर पॉलिस्टर नेलोन वाली साड़ी सूरत से लाकर लोग बेचते हैं। ये बनारस क्या, पूरा यूपी भी घूमेंगे तो पूरे यूपी में सिल्क नहीं होता। सिल्क रेशम यहाँ पर गवर्नमेंट को 3 जगह से गांव में बांटता है। एक तो बेंगलोर में जाएंगे तो जगह मैसूर, जो रामनगर सिल्क बोर्ड, और एक प्लेस है बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर। आपके कोलकाता में भी मुर्शिदाबाद से सिल्क गवर्नमेंट का सर वगैरह, तो गवर्नमेंट वहाँ से सिल्क लाकर गांव वालों को देते हैं, और गांव वाले साड़ी वगैरह बनाकर अपने कोऑपरेटिव देते हैं। और आधा ज्यादा गाँव वाले मतलब अपने यहाँ खुद रखते हैं, और गाँव वाले कोऑपरेटिव देते हैं, मतलब जहाँ लोग जा नहीं पाए। मगर एक आगे जो मेन टेम्पल यहाँ का है ना, उसी के बगल गाँव वालों का खुद का सोसाइटी, वही वाला जो आप बोल रहे हैं ना। अच्छा, ये सारनाथ में रीजन के दीदी साड़ी के ऊपर GST नहीं लगा होता बुनकरों पे, क्योंकि गवर्नमेंट है हैंडलूम पे टैक्स वगैरह, तो वो सब हैंडलूम साड़ी से कि पावरलूम साड़ी, हैंडलूम इसलिए टैक्स नहीं है ना। देखिए हाथ से बनी हुई चीजों पे कोई भी टैक्स यूज नहीं होता। गांव में जो सिल्क गवर्नमेंट गांव में ला कर देता है, उससे सिल्क के लोग साड़ी बनाकर अपने यहाँ जमा करते हैं। क्योंकि यहाँ पूरे बनारस वगैरह में अलग से सिल्क वगैरह नहीं होता, यहाँ पॉलिस्टर काम होता ही नहीं है। এইখানে যে ফ্ল্যাগগুলো দেখা যাচ্ছে, ইয়েলো কালারের ফ্ল্যাগটা বুদ্ধিজমের, আর আরেকটা যে ফ্ল্যাগ আছে ওটা থাইল্যান্ড কান্ট্রির ফ্ল্যাগ। সো এখানে এই পুরোটাই কিন্তু ম্যানেজড বাই থাইল্যান্ড, যেরকম বলছে আমাদের গাইড ভাই। और इसको 80 फुट नॉइस का इसलिए बनाया गया, जो बुद्ध देव थे ना, वो 80 वर्ष तक जीवित थे। अच्छा। और 9 मंथ अपनी माँ की पेट में, तो इसलिए लॉजिक है इसको 80 फीट 9 इंच बनाने का। अच्छा। और इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया 16 मार्च 2011 में, और भी थाईलैंड के राजा द्वारा। और इस बुद्धा को बोलते हैं यहाँ पर लोटस बुद्धा, क्योंकि बुद्ध देव लोटस के ऊपर खड़े, देखिए। और ये लिली, अब क्या शालुक बोलते हैं, शालुक फूल, कितना सुंदर है। अभी इस पे धूप पड़ेगा तब ये खुल जाएगा। अच्छा,
नेपाल के राजा थे और बुद्ध देव की माता का नाम था महामाया। लेकिन जब बुद्ध केवल 7 दिन के हुए तब इनकी माता का डेथ हो गया। बुद्ध देव को बड़ा किया था इनकी एक मासी ने, प्रजापति गौतमी। उन्होंने बुद्धा का दूसरा नाम गौतम रखा था, इसलिए लोग भी इनको गौतम बुद्ध बोलते हैं। और बुद्ध देव का मैरिज हुआ था केवल 16 साल की उम्र में। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। इनसे बुद्ध को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा राहुल। मगर जब बुद्ध केवल 28 साल के हुए वो सब कुछ अपना छोड़कर चले गए, फैमिली वगैरह छोड़ दिए। बौद्ध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 6 साल तपस्या करने के बाद। और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्धा बौद्ध गया छोड़कर यहाँ सारनाथ में आ गए थे। यहीं पर उन्होंने 5 जन को पहला टीचिंग दिया बौद्ध धर्म का, और यहीं से बौद्ध धर्म आज पूरे विश्व में सारनाथ। म्यूजियम में इसी का ओरिजिनल पार्ट रखा गया है, मगर म्यूजियम स्तूपा वगैरह में क्या होता है और इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ASI, तो उसके अंदर क्या करते हैं लोग मोबाइल बैग गाइड वगैरह को अलाउड नहीं करते हैं, इसलिए इसको रेप्लिका रखा गया तो लोग आए फोटो ले पाए। और इसको बनाने वाले थे सम्राट। के बीच में भी 4 जानवर चल रहे हैं, हाथी बैल घोड़ा से। इसके भीतर हाथी इसलिए बना होता है, जब बुद्ध देव अपनी माँ के पेट में थे बुद्ध देव की माता को एक सपना आया था व्हाइट एलिफेंट का, और इसी के जस्ट आगे बना हुआ एक बैल। जो बैल होता है बुद्ध देव के राशि का सिंबल था। बुद्ध की राशि थी वृषभ, तो वृषभ राशि का सिंबल बैल होता है। और उसी के आगे बना एक घोड़ा, जो घोड़ा होता है बुद्ध के सवारी का सिंबल था। बुद्ध ने अपना राजपाट घर परिवार एक घोड़े बैठ के सब कुछ छोड़ दिया था। और एक आगे बना हुआ एक शेर। जो बुद्ध देव थे वो शाक के वंश में पैदा हुए थे। बुद्धा क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, तो शाक के वंश का सिंबल और लाइन होता है सिंह, और इसके बीच में चक्र होता है, पूरी 24 तिलियाँ होती है। इसी चक्र से निकाल कर हमारे झंडे में लगा गया, उसमें भी 24 होता है। लेकिन झंडे में इससे पहले गांधी जी का चरखा हुआ करता था, मगर 22 जुलाई 1947 में वो चरखा हटाकर इसको लगाया गया था। और जो उल्टा लोटस होता है ना बुद्ध के डेथ का सिंबल है, निर्वाण का। आपने देखा होगा लॉर्ड बुद्धा की हर एक स्टैचू पादुक के ऊपर होता है, लोटस फ्लावर के ऊपर। मगर जब बुद्ध देव का कुशीनगर गोरखपुर में निर्वाण हुआ ना, वो लोटस को उल्टा कर देगा। ये उल्टा लोटस बुद्धा के निर्वाण यानी डेथ का सिंबल। और सन 1950 में इसको भीमराव अंबेडकर द्वारा हमारा नेशनल एम्बलम घोषित किया गया। ये हर एक गवर्नमेंट पेपर पे होता है, और सारनाथ से नोट करेंसी कॉइन वगैरह पे लिया गया। ऑरेंज लगाते राइट, ये ऑरेंज कुमकुम का पेड़ है। ऑरेंज इसके अंदर कुमकुम का लाल लाल बीज होता है, और इसको हाथ पे ड्राई करने से ऑरेंज कलर निकलता है। क्या नाम है? कुमकुम पेड़ भी होता है। अच्छा कुमकुम पेड़, ओके। इसका जो ओरिजिनल खेती करते हैं लोग ना, वो केरला में करते हैं। सुना होगा सबसे ज्यादा मसाला अपने इंडिया को केरला में, वहीं से इसका भी खेती करते हैं। सुना होगा अभी भी चाइना और तिब्बत झगड़ा कर रहे हैं। रीजन क्या, जो दलाई लामा अभी चेंज होने वाले हैं। चाइना कंट्री के बच्चे, मतलब चाइना कंट्री गवर्नमेंट बोल रहा था हमारे किसी बच्चे को दलाई लामा बना दीजिए, मगर दलाई लामा ने सिलेक्ट किया था अपने इंडिया के बच्चे, अरुणाचल प्रदेश स्टेट का एक बच्चा। इसलिए चाइना तिब्बत से नरसी बुनाई हो रहा है। जो व्यापारी वगैरह होता है यहाँ से डायरेक्ट अपने आकर उठा ले जाते हैं। ये जो सारा साड़ी वगैरह का डिजाइन होता है ना दीदी, वो इस कार्ड में रहता है। इसमें ना हाँ। देखिए पहले तो ये होता है हैंडलूम, जो पूरे घर घर में सारनाथ के लिए ही बिजनेस से बुनाई करना। पहले किसी भी साड़ी या सूट का लोग बनाते हैं ग्राफ पेपर, फिर उसके बाद बनता है ये पंच कार्ड। कार्ड में डॉट्स द्वारा कोडिंग करते हैं डिजाइन की, और जो कार्ड होता है ना वो एक एक करके कार्ड मशीन पे रन करता है, वो चेंज होता है, ऊपर से बदलता रहता है। यहाँ इनके पैर के नीचे लगा है पैडल बम्बू का, जो पैर से नीचे अपने पुश करते हैं तो यहाँ पर होल और डिजाइन अपने आप होता है बगल में। ये जो ब्लैक कलर का स्टेट है ना, इसी को ताना बोलते हैं। और ये जो ब्लैक वाला बॉबिन इसके अंदर लोग फेंकते लेफ्ट राइट, इसको बाना बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने कबीर दास का ताना बाना, यही होता है। और जो हैंडलूम में साड़ी बनता है दीदी, हमेशा सीधा साड़ी नीचे होता है। ये जो बॉर्डर पे डिजाइन दिख रहा है ये उल्टा है, ये हैंडलूम साड़ी की पहचान होता है। अगर साड़ी जो पावरलूम में साड़ी बनता है और डिजाइन को प्रिंट करता है तो आगे और पीछे एकदम प्लेन होता है, मगर हैंडलूम साड़ी प्लेन नहीं होता है, पीछे तरफ हाँ थ्रेड रहता है, आगे डिजाइन तो पीछे थ्रेड का ही वर्क रहेगा। ठीक, यही साड़ी है। आप एक एक धागे से बनाएंगे कम से कम 6.5 मीटर तक। आप आइडिया कर सकते हो इसको कितना टाइम लगेगा बनाने में। ये जो धागा है ना, इसी एक एक धागे से बुनाई करेंगे 6.5 मीटर तक साड़ी, ब्लाउज पीस उसमें जुड़ा रहता है। कितना टाइम लगेगा फिर? स्टार्टिंग ये तो इसमें कम से कम 8 से 9 दिन लगेगा। जो नॉर्मली साड़ी बनाने में 3 दिन, लास्ट 1 महीना भी लगता है। इसको आप लोग बनारसी बोलते हैं ना, यही साड़ी ये बनेगा पूरा जेरी वाला। अभी तो स्टार्टिंग में देखिए अभी बन रहा है, ब्लाउज पीस बनेगा, इसके बाद से पूरा बनता चला जाएगा साड़ी। ये पूरा प्योर जेरी का काम है इस पे।
ये जरी नहीं लगने से साड़ी 2000-2500 तक मिलेगा, जहाँ जरी लगा वो 3000 से ऊपर चला जाएगा। ये रीजन होता है, जरी लगने से तो महंगा हो जाता है। ये सिल्क यहाँ का नहीं है, देखिए इन फसल का अच्छा, इनके एक सिल्क के धागे में दीदी 108 थ्रेड है। जो लेलोन होता है वो केवल एक पॉलिस्टर होता है, लेकिन सिल्क को देखिए आप कितना भी खोलेंगे खुलता चला। ये प्योर सिल्क ऐसे समझ में आता है। यहाँ बनारस में जो भी साड़ी आजकल क्या होता है, लोग 10,000 भी लगा देते तो बनारसी ओरिजिनल नहीं ले पाते हैं। এটা হচ্ছে মিউজিয়াম, আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম। ভেতরে হয়তো ফটোগ্রাফি অ্যালাউড হবে না, বাট আজকে কিন্তু ফ্রি আছে, কোনো টিকিট লাগছে না। আর লকারটাও কিন্তু ফ্রি, বেশ ভালো ব্যাপার এটা। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে যা বলতে তাই। মিউজিয়ামের ভেতরে ছবি তোলা অ্যালাউড, বাট ভিডিও করা অ্যালাউড নেই। সো আই কুড নট মেক আ ভিডিও, বাট এই কিছু কিছু ছোটো ছোটো ছবি তুলেছিলাম। আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের বাইরে এইরকম শপস থেকে কিন্তু আমি বেশ টুকটাক শপিং করেছি, অ্যান্ড ইউ ক্যান অলসো ডু দ্যাট। এখান থেকে কিন্তু শপিংয়ের বেশ ভালো আমরা নিলাম, বেশ ভালো মানে ঠিকঠাক রেটে এখানে কিন্তু জিনিস আছে। অ্যাকচুয়ালি সারনাথে ট্যুরিস্ট আসে, বাট খুব বেশি আসে না, তাই জন্য এখানে প্রাইসেসগুলো কিন্তু বেশ কম। সো মানে আমি মনে হয় যেটা নর্মাল মার্কেট সেখান থেকে কিন্তু আমার প্রাইসেস ঠিক লাগছে এখানে। অ্যান্ড ইউ ক্যান বার্গেন অলসো, বেশ ভালো ব্যাপার সেটা। দেখছি যদি টাইম থাকে আমি আরেকটু কিছু নেব। ছোট্ট ছোট্ট এত সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে এখানে, অ্যান্ড দে আর রিয়েলি নাইস। एंटर किए थे टेम्पल के अंदर तो बुद्धा का फेस एकदम कॉमन दिख रहा था, मतलब हम लोग तरह। यहाँ पर देखिए बुद्धा का फेस थोड़ा डिफरेंट है। आप 27 कंट्री में जाएंगे ना, अलग अलग बुद्धा का फेस मिलेगा, और अलग अलग बौद्ध धर्म को मानने वाले हर एक मतलब हर मंग्स होते ना मूर्ति पूजा करते थे। महाराष्ट्र में नागपुर हुए लोग, श्रीलंका के लोग, ये लोग पूजा पाठ करते हैं, तो महायान मंक्स बोलते हैं। हीनयान के लोग कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते, ये लोग शुद्ध बस ध्यान करते हैं और बुद्ध की टीचिंग फॉलो करते हैं। तो हम लोग के वहाँ वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग की तरफ जो वहाँ पे भी तो है बहुत, महायान मंक्स बोलते हैं। इंडिया में ज़्यादा वैसे, इंडिया इंडिया में वही है ना पूजा वाला। और सबसे ओल्ड प्लेस यही है। ये 2300 साल पुराना है, 2300 साल पुराना है। अच्छा। और इसको बनाने वाले थे सम्राट अशोक, जो कलिंग युद्ध के बाद बनाया था। पहले सम्राट अशोक बहुत बड़े हिंदू राजा थे, मगर जब उड़ीसा स्टेट में कलिंग युद्ध हुआ, इतना खून खराबा देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया तो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए पूरे इंडिया में 2 चीज़ का निर्माण किया। उस टाइम तो इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा था, थाईलैंड, श्रीलंका, पूरा एशिया कंट्री इंडिया के पार्ट्स थे। तो अशोका ने पूरे इंडिया में 84,000 स्तूप बनाया था, इस टाइप का दिखने वाला 84,000। और जो हमारा अशोक पिलर होता है ना, अशोक स्तंभ, उस टाइप का 17 पिलर। मगर सुना होगा आपने एक मुगल शासक औरंगजेब जो पूरा स्तूपा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसकी जो हाइट स्तूपा की है 104 फीट, और ये पूरा सॉलिड पूरा कंप्लीट पैक है। इसके भीतर जाने के लिए कोई खिड़की कोई दरवाज़ा नहीं बना है, केवल ऐसे लोग जाकर राउंड करते हैं और बगल में ध्यान वगैरह करते हैं। और इसी के जस्ट बगल वाले पार्क से हमारा नेशनल एम्बलम मिला था। पहले अशोका क्या थे, एक राजा थे। जब यहाँ ब्रिटिश आया तो उनको लगा पूरे एरिया में खजाना वगैरह है, तो उन्होंने पूरे एरिया का खुदाई किया, तोड़ फोड़ किया। तो उसी के भीतर से जितने आपने म्यूजियम देखा ना, अशोक से जितने बुद्ध की मूर्तियाँ थी, सब इसी वाले पार्क से मिला। और यहाँ से पार्क से खुदाई किया गया और ब्रिटिश वालों ने म्यूजियम बना के उसके अंदर रख दिया। म्यूजियम जो 1910 का बना हुआ है, 1910 का होगा, आज़ादी से पहले का म्यूजियम। আচ্ছা, আমরা এখানে একটা নিম্বু পানি ব্রেক নিয়েছি, বিকজ এর সামনে এখনও আরও জিনিসপত্র দেখার আছে। সো আমাদের নিম্বু পানি ব্রেক নিয়ে আমাদের গাইড ভাইয়া খুব ভালো, আমাদের অনেক সময় দিচ্ছে ছবি তোলার। तीसरा बोधि वृक्ष काट कर सारनाथ में लगा है। इसी के बैक साइड मतलब नियर में नेचुरल मतलब ओरिजिनल बोधि वृक्ष का रियल 3rd ब्रांच है। अच्छा। और इस टेम्पल को उन्होंने 1931 में यहाँ पर बनाया था, इंडिया गवर्नमेंट से जमीन को लीज पे लेकर। अच्छा, मतलब श्रीलंका ये है। इसके अंदर में बुद्ध की बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। जितने भी आपको बुद्धिज्म के बारे में हमने स्टोरी में बताया ना, सबका पेंटिंग बना हुआ है। अच्छा अच्छा। टेम्पल के अंदर ভালো, বেশ সব থেকে ভালো
ভিড় আছে বাট স্টিল ঠান্ডা ঠান্ডা বেশ হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর মন্দিরটা শ্রীলঙ্কার বানিয়েছে इसके अंदर ओरिजिनल बोधि भिक्षु का थर्ड ब्रांच है। अच्छा। पहला था बौद्ध गया, हाँ सेकेंड था श्रीलंका, श्रीलंका। थर्ड यहाँ पर आया है उसका वो एक काला उसका ब्रांच लेके श्री प्लांट था। और इसके अंदर श्रीलंका से। जिस बुद्धा ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था ना, टीचिंग मुद्रा में बुद्धदेव बैठे हुए हैं, राउंड में 5 शिष्य भी नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा और जो এই হচ্ছে সেই পিপল ট্রিটা যেটা হচ্ছে যেটার কলম বা ব্রাঞ্চ নিয়ে আসা হয়েছে শ্রীলঙ্কা থেকে এটাই আসল বলা যেতে পারে আর এইখানে হচ্ছে যে টিচিংস দিয়েছিলেন যেভাবে ওই পোস্টটাতে বসে আছে এখানে বুদ্ধ ये उसका हम लोगों ने डिजाइन बनाया है। ये अच्छा। 750 का होता है और ये सब होता है देखिए रेडियम सिल्क का है। ये जैसे पार्टी फंक्शन ओकेजन के लिए सब पार्टी वेयर है। पार्टी इसमें वेयर जितना लाइट पड़ता है उतना ही शाइन करता है। इस सिल्क का नेचर होता है। इसका क्या ऐसा क्या रेट का है ये वाला 1250 का है। 1250 ये सब होता है देखिए, ये सब होता है मूंगा सिल्क का। ये मूंगा बनाना होता है। ये फुल वर्क होता है, हैंडलूम का होता है, पूरा हाथ से बनाया जाता है। ये सब हैंडलूम है ना इसमें भी कलर डिजाइन बनाए जाते हैं। देखिए ये सब होता है। ये सब होता इसका है प्राइस? कोसा सिल्क होता है। प्राइस? 1850 का होता है। कोशा सिल्क हाँ कोसा सिल्क। राइट कोरा सिल्क में होता है कुकुन के रेशम के पहले धागा से बनाया जाता है। फर्स्ट थ्रेड का कुकुन होता है। अच्छा ये सब होता है 250 में 4 थ्रेड। देखिए टाइप किलो पैटर्न सब होता है कातान सिल्क में होता है। कातान सिल्क यही तो सबसे पॉपुलर है अच्छा सिल्क होता ज़्यादा है। यही पॉपुलर है हम लोग के वहाँ ज़्यादा कोलकाता में इसका प्राइस कैसा है ये मैडम 2700 प्लेन साड़ी होता है, सिर्फ 500 होता है। बॉर्डर बना वेदासपुर में उसी के ऊपर ये जरी के ऊपर आया जाता है। ये इस तरह होता है। कतान सिल्क का खुद ही होता है। सिल्क को जितना आप ज़्यादा फिल्टर करेंगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट और उतना ज़्यादा प्राइस ही इसमें भी कलर्स अगर आप किसी में कलर्स पूछेंगे तो बता देंगे। कलर्स आपको और भी मिल जाएंगे। पसंद है इस कलर में क्या इसका प्राइस सुन लेती हूँ पहले 3300 का है आई लव दिस कलर्स कलर इसमें मिल जाएंगे आपको। मुझे ये 6 से 7 कलर आएगा। मयूरकंठी कलर टमा दारुण लगा और ये लोग पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध जो बॉर्न हुए थे चाइना कंट्री में ही है। हाँ, बुद्धिस्ट लोग के बहुत लकी होते हो, एक दूसरे को लोग गिफ्ट करते हैं। और से बुद्धिस्ट का सब लोग एक दूसरे गिफ्ट करने के लिए करते हैं। काफी बताता हूँ। जितने भी तिब्बत कंट्री से यहाँ पर मॉन्क्स आते हैं ना, सब इनका ये रेस्ट रूम है। ओके ये लोग ओनली मॉन्क्स को देते हैं। इंडियन लोग चाहते हम ले सकते उनके लिए ये लॉर्ड बुद्ध। ठीक है, मेरा नाम राज है। और राज? राज राज अच्छा हम राज लोग यहाँ लोकल पूरा सारनाथ फॉरम विजिट कराते हैं। यहाँ पर म्यूजियम है, टेम्पल, स्तूपा वगैरह बहुत 3rd सेंचुरी BC पुराना हिस्ट्री है। सब लोग यहाँ पर हम लोग गाइड करते हैं। अच्छा तुम अपना नंबर दोगे तो उससे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं तुमसे अगर आएंगे तो तुम नंबर अपना बता दो एक बार। ठीक है, मेरा नंबर 7268812002 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को भी आकर यहाँ गाइड चाहिए होगा तो हम अवेलेबल रहेंगे यहाँ। ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छे से घुमाए हो খুব ভালো করে ঘুরিয়েছে আমাদের আর আমরা খুব মানে আমাদের টাইম দিয়েছে আরামসে খুব ভালো हिस्ट्री ऑनर है, हिस्ट्री ग्रेजुएशन। वेरी गुड इसीलिए और ज़्यादा पता है। আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা যাচ্ছি ব্লু লস্যি তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ মানে খুঁজছি আর এইটা হচ্ছে থানা চক বারাণসী তার বাঁ দিকের এই রাস্তাটা দিয়ে মানে উল্টো দিকের রাস্তা বেসিক্যালি
তো এখান দিয়ে গিয়ে আমরা দেখব, গুগলই ভরসা, এতগুলি এখানে যে উই আর ভেরি কনফিউজড। আর আমরা পৌঁছেছি ওই 1:15 দিকে, মানে সারনাথ থেকে। তো আজকে আমাদের এত গরম লেগে গেছে যে লস্যি খাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে। লেটস সি যে খুঁজে পাই কিনা আমরা, রাস্তাটা খুঁজে পাই কিনা দেখি। ব্লু লস্যিতে যাচ্ছি বলছে তো এই রাস্তাটা, অ্যান্ড এই হলো बनारस की गलियाँ, পাতলা পাতলা একেবারে, পাতলা পাতলা গলি চারিদিকে। এই হলো সেই ব্লু লস্যি। আমরা এখানে দেখি কি খাবো, কী কী আছে, চলো। অনেকক্ষণ পর একটা এমন পেলাম যেটা ইউটিউব রাবড়ি মালাই লস্যি খেলাম আমরা 120 টাকা করে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ জাস্ট টু ডাই ফর। দারুণ খেতে। অ্যান্ড আগেন ডিটেলড ভ্লগ আছে আমার আর একটা ভিডিওতে, ইউ উইল গেট দ্যাট ইন দ্য আই বাটন। আর এই ব্লু লস্যির একটা লস্যি খেয়ে আমাদের এত পেট ভরে গেল যে উই থট লেটস গেট ব্যাক। মণিকর্ণিকা ঘাট ইজ আ প্লেস যেখানে আপনারা এলে একটা চিতা দেখবেন না, এটা হতেই পারে না। ইউ উইল হ্যাভ টু ফেস দ্য ডেড বডিজ। অ্যান্ড আমরা এখানে নিজে থেকে আসিনি, উই জাস্ট কেম বিকজ আমাদের রাস্তাতে এটা পড়তোই, বিকজ আমরা কিন্তু মানে ঘাট হয়ে হয়ে যাব দশাশ্বমেধ। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে এই মণিকর্ণিকা পার হতেই হবে। সো আই ওয়াজ নট রিয়েলি উইলিং টু কাম হিয়ার, আমার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না, বিকজ ইট হ্যাজ টু মাচ এনার্জিজ অ্যান্ড আই এম নট রেডি টু ফেস ইট। বাট যাই হোক, যে কোনোভাবে আই জাস্ট ক্রসড ইট অ্যান্ড করে আমরা হচ্ছে নেক্সট ঘাট, পাশের যে ঘাট, এগুলো দেখে আমরা অ্যাকচুয়ালি দশাশ্বমেধের দিকে যাওয়ার প্ল্যান করেছি। সো এই হচ্ছে মণিকর্ণিকা, ওয়্যার সব সময় চিতা জ্বলতে থাকে। দিস ইজ দ্যাট ঘাট। আর আরেকটাও এখানে ঘাট আছে, দ্যাট ইজ হরিশচন্দ্র ঘাট, যেটা আই থিঙ্ক পরের ব্লগে ইউ উইল সি। বাট এই মুহূর্তে মণিকর্ণিকা ঘাট আমরা ক্রস করছি। And when you are in Varanasi, you may try out to come here if you are brave enough and if you have so much positive energy in you, because definitely you will feel a vibe here, a form of energy, because we all know যে আমরা সবাই energy, bodies are energies and energy can neither be destroyed nor can it be formed. So energy কোনোদিন ধ্বংস হয় না, so that energy is somewhere present. So positive হোক, negative হোক, but you will feel that if you are brave enough, come here. But yes, কোনো একটা ফিলিং নিয়ে এখান থেকে অবশ্যই যাবেন। হাঁটতে হাঁটতেই আমরা জাস্ট পাশের ঘাটটা এলাম, মানে মণিকর্ণিকার একদম পাশে। ঘাটগুলো অ্যাকচুয়ালি এরকমই, একটার পর একটা জাস্ট লেগে আছে। এটা হচ্ছে সিন্ধিয়া ঘাট, ভেরি বিউটিফুল মর্নিং। আর ওইখানে দেখা যাচ্ছে ব্রিজটা, যেটাতে ডাবল ফ্লোর আছে, মানে উপর নিচ করে। সো বেশ সুন্দর ঘাটটা, বেশ সুন্দর, প্রত্যেকটা ঘাটই বেশ সুন্দর এখানে। আচ্ছা, আমরা এখন বসে আছি সেই কালকে যেখানটায় এসেছিলাম, মানে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের যে করিডোরটা তৈরি হয়েছে গঙ্গা অবধি, সেই করিডোরটাতে। অ্যান্ড এর কিন্তু পাশেই মণিকর্ণিকা ঘাট, মানে আই থিঙ্ক, আমি জানি না ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে কিনা, এই যে পার্টটা ওখানে এই যে আগুন দেখা যাচ্ছে, মানে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি ওগুলো চিতার আগুন। সো একদম অ্যাডজাসেন্ট টু এই ঘাট, মানে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের ঘাট হচ্ছে মণিকর্ণিকা ঘাট। সো আমি
আমরা ওই জায়গাটাতে যাইনি যেখানে হচ্ছিল, বাট অ্যাজ এখান থেকে দেখাই যাচ্ছে, ইউ ক্যান সি ইট, ওটা অ্যাকচুয়ালি মণিকর্ণিকা ঘাট। আর আমরা অনেক হেঁটেছি তাই আমরা টায়ার্ড হয়ে পড়েছি, তো বসে রেস্ট নিচ্ছে এখানে, অ্যান্ড আবার তারপরে হাঁটা শুরু করবো। বিকজ এখানে এত বেশি হচ্ছে মানে ভাড়া বলছে, অ্যাকচুয়ালি ট্যুরিস্ট দেখে আরও এত বেশি ভাড়া বলছে, আর যা ইচ্ছা ভাড়া বলছে রিক্সাতে আর টোটোতে। সো উই কান্ট ট্রাস্ট এনিওয়ান, তাই জন্য হচ্ছে আমরা হেঁটেই যাব। সো এই যে ভিড় আছে কিন্তু ভালোই, আমরা ভালোই পেয়ে গেছি। আমরা হচ্ছে এই গলিটা থেকে বেরোলাম, অ্যান্ড এই যে দশাশ্বমেধ ঘাট, অ্যাকচুয়ালি গলি দিয়ে আসলে কিন্তু বেশ শর্ট। যেটা আমাদের মণিকর্ণিকা ঘাটে বলছিল নৌকাতে, আই থিঙ্ক 500-600, কেউ 800 বলছিল, মানে যা ইচ্ছা বলছিল। তো সেটা কিন্তু এখানে আমরা এলাম হেঁটে জাস্ট ভেতর দিয়ে গলি দিয়ে, অ্যান্ড আই থিঙ্ক 10 মিনিটস লাগলো আসতে। সো হেঁটে কিন্তু পুরো ঘোরাই যায়, নট আ বিগ প্রবলেম। বাট ওই আর কি চিনি না বলে, বাট ইউজ ইউর গুগল ম্যাপ, কারণ এখানকার লোকজনও কিন্তু বিশাল হেল্পফুল নয়। পুলিশকে জিজ্ঞেস করবে, দে উইল হেল্প ইউ, বাট আদারওয়াইজ লোকজন খুব একটা হেল্পফুল নয়, তাই জন্য গুগল ম্যাপ ইজ বেস্ট। আর যাই হোক আমরা পৌঁছে গেলাম দশাশ্বমেধ ঘাট, আর এরপরে আমরা বেরোচ্ছি গদলিয়ার দিকে, আমাদের হোটেলের দিকে। আমি আবার একটু পরে আসবো, তখন হচ্ছে শপিং যা আছে তখন করা হবে, নট নাও। সুরভি গৌরী, আচ্ছা, দশাশ্বমেধ ঘাটের যে রাস্তাটা সেখানে কিন্তু প্রচুর শাড়ির দোকান আছে, আর এখানে এই গৌরীটা নাকি খুব ভালো, আমরা পরে এসে দেখবো। লক্ষ্মী শাড়ি, অনেক কিছু শাড়ির দোকান এখানে কিন্তু আছে। আমরা এখন একটু টায়ার্ড, সকাল বেরিয়েছি, এখন গিয়ে স্নান করবো, ফ্রেশ হবো, দিয়ে আমরা যখন আসবো তখন শপিং দেখাবো। যদিও একটু শপিং হয়েইছে, শাড়ি কেনা হয়েছে একটা করে, বাট এখনও বাকি আছে অনেক কিছু, তো সবই হবে। রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দিই। সো দ্যাট ওয়াজ অল অ্যাবাউট মাই ব্লগ, যেখানে আপনারা দেখলেন সারনাথ। ডেফিনেটলি ডোন্ট মিস আউট অন সারনাথ। বারাণসী গেলে সারনাথকে কিন্তু একদিন অবশ্যই রাখবেন। অ্যান্ড ইয়েস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। প্লিজ ডক্টর রুষা ব্লগসকে সাবস্ক্রাইব করুন, বিকজ আই রিয়েলি নিড ইউর সাপোর্ট নাও। অ্যান্ড এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিন যারা আপকামিং ডেজে বারাণসী যাচ্ছে বা যাদের ইচ্ছা বারাণসী যাওয়ার। অ্যান্ড ইয়েস, প্লিজ লাইক দিস ভিডিও, আর একটা কমেন্ট প্লিজ করবেন। অ্যান্ড আমরা এখন দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তা দিয়েই যাচ্ছি, উই আর গেটিং টু দ্য হোটেল। এর পরের ব্লগ খুব তাড়াতাড়ি আসছে। বারাণসী সিরিজটা কেমন লাগছে সেটাও কিন্তু জানাতে ভুলবেন না। অ্যান্ড অ্যাগেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ফুল ভিডিও।